Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back again to online video classes. I am Raza Ali Nogeri, lecturer physics at Cadet College, Panwakil. Welcome you all in our video classes. We are discussing chapter number 11, heat. The topic that we will discuss today are scales of temperature, interconversion of temperature scales, and volumetric thermal expansion. Scales of temperature. Before going to discuss what are the scales of temperature, the temperature we have already defined in our previous lecture. The temperature is simply degree of hotness and coldness of a body. A temperature is measure of heat flow. The temperature is measured by an instrument named as a thermometer. There are the three different scales which are designed on that thermometer: Celsius, centigrade, Fahrenheit, and Kelvin, while the SI unit of temperature is Kelvin. Now all these three different scales of temperature was differentiate between the two main points. Number first was boiling point of water. Number second was melting point of ice. On the basis of these points, the three different scales were designed. First one is known as upper fixed point and second is a lower fixed point. Now the Celsius scale of temperature in which the melting point of water is marked as 0 सेंटीग्रेड. इस स्केल के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया था या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ली गई थी, दैट इज 0 सेंटीग्रेड. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 100 सेंटीग्रेड. जबकि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो 100 सेंटीग्रेड ली गई. अभी लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट तक जो दरमियान में डिजिट्स थे, इंटरवल था, that is 100 centigrade. The interval between these divisions are equal 100 centigrade and each interval will be read as 1 centigrade, 2 centigrade, 3 centigrade up to so on. Now the second scale is Fahrenheit scale. Scale of temperature in which the melting point of ice is marked as 32 Fahrenheit. अभी इस टेम्परेचर इस स्केल के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ली गई दैट इज 32 Fahrenheit, while the boiling point of water is marked as 212 Fahrenheit. अभी melting point of ice will be called as a lower fixed point. Boiling point of water will be marked as a upper fixed point. Fahrenheit स्केल के अंदर लोअर पॉइंट से लेकर अपर पॉइंट तक जो डिफरेंस आएगा दैट इज 180 इक्वल पार्ट्स. अब ये डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल तरीकेकार है. आप अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस करें. जैसे कि यहाँ अपर फिक्स पॉइंट 212 है, लोअर फिक्स पॉइंट 32, तो 212 से हम जब माइनस करेंगे 32, आंसर विल बी 180. नाउ ईच इंटरवल विल बी रीड एज अ 1 Fahrenheit, 2 Fahrenheit, 3 Fahrenheit up to so on. Now the third one scale is Kelvin scale, and keep one thing in your mind कि Kelvin is also SI unit of temperature. Now the Kelvin scale is in which the melting point of ice is marked as 273 Kelvin, while the boiling point of water is marked as 373 Kelvin. केल्विन स्केल के ऊपर जो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट थी आइस की वो 273 केल्विन ली गई, जबकि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो 373 केल्विन. अभी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी जो डिफरेंस होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ 100 and each interval will be read as 1 Kelvin, 2 Kelvin.
अभी केल्विन स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल के भी मोस्टली कंपेयर समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस विल बी सेम। नाउ एज यू सी अ डायाग्राम जिसके ऊपर हमारे पास 3 थर्मामीटर्स डिजाइन किए गए हैं और इन 3 थर्मामीटर के ऊपर हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, देन फ़ारेनहाइट स्केल। So this point will be called as a lower fixed point. This one will be lower या जिसको आप कह सकते हैं melting point of ice. While this one will be upper fixed point या जिसको आप कह सकते हैं boiling point of water. Now on centigrade scale, the melting point of ice is 0 centigrade, while the boiling point of water is a 100 centigrade. On Fahrenheit scale, the melting point of ice is 32 Fahrenheit, while the boiling point of water is 212 Fahrenheit. And on Kelvin scale, the melting point of ice is 273 Kelvin, while the boiling point is 373 Kelvin. Okay, now we have interconversion of temperature scale. It's a very important topic क्योंकि हर मर्तबा हमें ये कंफ्यूजन रह जाती है कि हम टेम्परेचर के स्केल्स को कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो सेंटीग्रेड या केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द interconversion of temperature from Celsius scale to Kelvin scale and then Kelvin scale to Celsius. अगर टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में गिवन हो तो उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है कि जो भी टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड स्केल में गिवन हो उसमें आप ऐड करें, प्लस करें 273, देन इट बिकम्स इनटू द केल्विन स्केल। अगर मैं कहूँ कि यहाँ सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर 200 ले रहे हैं और उसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 473। दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज अ केल्विन। अगर केल्विन हमें गिवन हो और सेंटीग्रेड या सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर केल्विन का गिवन हो उसमें से माइनस करें 273। सेंटीग्रेड में प्लस 273 तो केल्विन, अगर केल्विन से माइनस करें 273 देन इट विल बी इनटू सेंटीग्रेड स्केल। नाउ अगर हम फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करें सेल्सियस में या सेल्सियस से कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, लेट्स सपोज अगर हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है या सेल्सियस में गिवन है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो जिसके लिए फार्मूला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 temperature in centigrade plus 32. This is the formula which we will use to find to convert the temperature from Celsius centigrade to Fahrenheit centigrade. उसी तरीके कार से अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और केल्विन में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तब फार्मूला होगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32। इस फार्मूले के तहत हम फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर अगर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर। अगर हम केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में जाएं तो वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं, सिंपल हम करेंगे कि अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में गिवन है फर्स्ट उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस या सेंटीग्रेड में, देन उस सेल्सियस या सेंटीग्रेड को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। अगर फ़ारेनहाइट हमें गिवन है केल्विन में कन्वर्ट करें तो वही तरीक़ेकार होगा कि सबसे पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, देन जो भी आंसर आएगा सेल्सियस का उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में आ जाएगा। नाउ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। लीनियर थर्मल में वन डायरेक्शनल या लेंथ में जब मटेरियल के अंदर चेंज आए हीट के बढ़ाने से उसको लीनियर कहेंगे। नाउ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है? द एक्सपेंशंस occur in a volume on heating is called
वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि जब भी किसी मेटल मटेरियल हीट देने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज आए, मतलब कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों चीज़ों के अंदर अगर चेंज आए तो उसके चेंज को टेम्परेचर के चेंज के साथ कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। एज यू सी इन अ डायग्राम, हमारे पास एक क्यूबिक सेंटीमीटर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज ना सिर्फ उसके लेंथ, विड्थ या हाइट, बल्कि उन तीनों चीज़ों के अंदर आ रही है। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम नाम देंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इंक्रीज द टेम्परेचर डेल्टा टी, देन ये हमारे पास एक क्यूबिक है जिसका जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं ओरिजिनल वो वी ले रहे हैं। तब उसका जो टेम्परेचर था वो टी था। जैसे ही उस टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, T1 से T2 तक आ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, तब उसका जो वॉल्यूम आ रहा है डेल्टा वी आ रहा है। नाउ डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी मटेरियल के ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ। अगेन सेकंड वन इज डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, के चेंज इन वॉल्यूम अगेन चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा, उतनी उस बॉडी के वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी को हमेशा खत्म करने के लिए हम दो साइंस लेते हैं, एक इक्वल की, दूसरा कांस्टेंट। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी, जहां हमारे पास बीटा क्या है, वेयर बीटा इज कांस्टेंट एंड नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। जहां बीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या किस चीज की है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन? इट इज simply defined as the change in volume per unit original volume पर सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम में चेंज आए, उसको हम डिवाइड करें उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ, तो हमारे पास एक रेशो बनेगा, जिस रेशो को हम नाम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अभी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को हम डिनोट करते हैं बीटा के साथ। तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। The SI unit of coefficient of volumetric thermal expansion will be सेंटीग्रेड इनवर्स आर वन अपॉन सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट ऐसा है, मीटर क्यूब है, तो चेंज इन वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों का यूनिट मीटर क्यूब होगा, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगी। मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। बाकी जो टेम्परेचर का यूनिट है वो सेंटीग्रेड या केल्विन, तो इसलिए जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का ऐसा यूनिट होगा वो सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन। नोट वन थिंग, कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, हियर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब it means the coefficient of volumetric thermal expansion beta of material is 3 times coefficient of linear thermal expansion। कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बनिस्बत जो बीटा आपके पास है उसके अंदर 3 अल्फा आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्फा इज अ वन डायरेक्शनल एक्सपेंशन, कि लीनियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ के मुतालिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बीटा की बात करें तो उसके अंदर आ जाएगी, विड्थ भी आ जाएगी और हाइट भी आ जाएगी। इट मीन्स कि देयर आर द 3 अल्फाज व्हिच इक्वली फॉर्म वन बीटा। So thank you very much. This is all for today's lecture. If you ask any question, you may ask in your comment section.